ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ତେଣୁ ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହ ମିଶିକି କୁହନ୍ତୁ ଭାରତ ମାତା କି କୁହାଯାଏ ଯେ ଭୁଲ କରେ ସେ ଗୋଟେ ଶୈତାନ, ଯିଏ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ, ଯିଏ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେ ଇନସାନ, ଆଉ ଯିଏ ଭୁଲ କରି ନିଜ ନ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ବେଇମାନ। ଭାରତରେ 180% ବେଇମାନ ହେଲେ ବି ଫିର ବି ଆମ ଭାରତ ମହାନ। ସେହି ମହାନ ମାଟି ଭାରତରେ ମୋ ଜନ୍ମ, ଏହି ମହାନ ମାଟି ଭାରତ ମୋ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋତେ ପଚାରେ ମୁଁ ମୋର ଭାରତ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗର୍ବିତ ଅଟେ, ତାଙ୍କୁ ବେଳେ ଗୋଟେ ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ଯେ ଭାରତ କୌଣସି ବହି ଏଇଟା ନଦୀ ନୁହେଁ, ଅଥବା ଏ ଭାରତ କୌଣସି ଗଣିତ କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତର ପୃଷ୍ଠା ନୁହେଁ, ଅଥବା ଭାରତ କୌଣସି ଇତିହାସ କିମ୍ବା ଭୂଗୋଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏ ଭାରତ ହେଉଛି ମୋ ମା ମୋ ଜନନୀ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଜନ ଜନ ଭୂଇଷ୍ଠ ସର୍ବଦପି କରିଅସି ଯାହା କହୁ ଜନ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ଅଟେ। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂବିଧାନ ଲେଖା ଅଛି ପଞ୍ଜାବ ସିନ୍ଧୁ ଗୁଜରାଟ ମରାଠା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଉତ୍କଳ ବଙ୍ଗ ବିନ୍ଦ ହିମାଚଳ ଯମୁନା ଗଙ୍ଗା ଉଚ୍ଛଳ ଜଳଚିତରଙ୍ଗ। ଉତ୍ତରରେ ପର୍ବତରାଜ ହିମାଳୟର ମୁକୁଟ ସଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଯାହାର ଚରଣକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ତ୍ରିସମୁଦ୍ରର ମିଳନ, ସେହି ମହାନ ଭୂଖଣ୍ଡ ନାଁ ହେଲା ଭାରତବର୍ଷ। ଏଇ ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ, ଏଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ, ଏଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟର ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ। ସେହି ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ, ସେହି ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଆଜି ଆମେ ଲାଳନ ପାଳନ ହୋଇପାରିଛୁ। ତେଣୁ ସେହି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆମକୁ ନମସ୍କାର କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେହି ଜନ୍ମଭୂମିରେ କେତେ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗଣନା ନାହିଁ। କାରଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଭଳି କେତେ ଯେ ଆସିବ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିଗିଡ଼ାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନାହିଁ। କାରଣ କହିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ରାଜ୍ୟ କେତେ ଦେଶ, କେତେ ଖାଦ୍ୟ କେତେ ଦେଶ, ସବୁଠି ତାର ବା କାରଣ ନଦୀରୁ ଝରଣା, ଖାଦ୍ୟରୁ ଖଜଣା, ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲା ଭଳି ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ମୋ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦେଖିଲେ। ମୋ ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ ଯେ ମହାନ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାର ଗଣନା ନାହିଁ। କେତେ ଯେ ରାଜାମାନଙ୍କ ସୁଶାସନରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଆଗେଇ ଯାଇଛି ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗଣନା ନାହିଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମହାମୟୀ ରୋମାଞ୍ଚର କାହାଣୀର ନାୟକ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ନିଜର ସୁପୁତ୍ର ଭରତଙ୍କ ନାମରେ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷ। ସେହି ମହାନ ଭାରତବର୍ଷ ଯୋଉଠିକି ଦୁର୍ନୀତିକୁ କେବେ ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ ଭାରତବର୍ଷ କେବେ ବି କୋଉ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇପାରିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଆମ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଆମ ଭାରତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ, କାରଣ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଦେଶ, ଯାହାର କଳାକୃତିକୁ କେବେ ବି କ୍ଷୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଭଳି କେତେ ଜଣ ଏପରି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତର କଳାକୃତିକୁ କ୍ଷୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆମ ଭାରତରେ କୌଶଳତା ଏତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଇଂରେଜମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଗୋଟେ ସୁନାର ଦେଶ ବୋଲି। ଆଉ ଭାରତ କେବଳ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଭାରତ ସଂସ୍କୃତିରେ ମଧ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ସୁନାର ଚଢ଼େଇ ଥିଲା ଆମ ଦେଶ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇ ନଥାଏ ଯଦି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ତେବେ ତାର କ୍ଷୟ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୋ ଭାରତବର୍ଷ ଉପରେ କେତେ ଯେ କୁଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି ତାର କୌଣସି ଗଣନା ନାହିଁ। ସୁନାର ଚଢ଼େଇ ଥିଲା ଯେ ଭାରତ, କ୍ଷୟ ଥିଲା ତାର ଦେଶ କୀର୍ତ୍ତି, ଆସିଲେ ବିଦେଶୀ କାଟିଲେ ତାଙ୍କର ହେଲା ଯେ ଅସୀମ କ୍ଷତି। କ୍ଷତିର ଗଣନା ହୋଇ ନ ପାରଣା ନଷ୍ଟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ ଦେଖିକି ସପନ 200 ବର୍ଷ ପରେ ଶାସନ ଫଟାଇ ଭାରତ ଛାତି ଥରାଇ ଭାରତ ଛାତି। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଡଚ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଓଲନ୍ଦାଜ ଭଳି କେତେ ଯେ ଆସି ଆମ ଭାରତର ଡେଣା କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତାର କୌଣସି ଗଣନା ନାହିଁ। ତଥାପି ମୋ ଭାରତ ଡରିନି ହାଇନି ସେ ହେଇନି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ବରଂ ଗୀତାର ଜୟ ପଥରେ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭାରତବାସୀମାନେ। ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ। କେତେ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଆସିକି ନିଜ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଗଣନା ନାହିଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଲୋକ ବଳ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନେ ସେତେବେଳେ କଳରେ ଏତେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷ ଏବେ ବିପଦ ଘେରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବୋଲି। କାରଣ ଇଂରେଜ ସେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ବିପଦମୁଖୀ ଦେଶ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରସର ଉଚ୍ଚ ଆଶା ଥିଲା। କାରଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ଧନ ଧାନ୍ୟକୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ବୋହି ନେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ କରିକି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଯେ ଅଧିକ କେତେବେଳେ ନେଇ ଆସିଲେ ତାହା ଭାରତବାସୀର ଜାଣିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 50 ପାଉଣ୍ଡ ଜମା କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସେମାନେ କଲେ ଭାରତର ଶୋଷଣର ପୁନରାରମ୍ଭ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଆମକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲେ କାରଣ ଇଂରେଜମାନେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲେ ତେବେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଳା ଏବଂ ତୋପ ବାଦକୁ ରାଖି ଦେଉଥିଲେ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନୁଷର ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଅଭିନୟ କରିପାରିବା? ଆମମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଏପରି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ, ତଥାପି ସେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିକି ସେଇଠାରେ ହିଁ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପଲାସୀ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ଦୁଇ ମହାନ ରାଜା ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଏବଂ ମିର୍ଜା କାସିମ ଭଳି ଦୁଇ ମହାନ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଇଥିଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଝଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇ ନଥାଏ ଯେ ଆମର ଭଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟକୁ ସେଠାରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏହି ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ।
प्रथम जब स्वाधीनता संग्राम है से समस्त आश्चर्यचकित रही स्वाधीनता विप्लव है समस्त भारत से आगे आसले निज निजर कर्तव्य से पैसा बांकी न दे केवल निज भारत को स्वाधीन एक स्वप्न देखा आरंभ करदे किंतु इंग्रेज मैंने आमको शेष पारे और इंग्रेज मैंने से भारत को एत दुर्बल कर जबकि भारत वर्ष से समय मूल्य मान किंतु महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन सुभाष चंद्र बोस रक्त दिन स्वाधीनता देवी यही उक्ति एवं लाल बाग पार्क पर से कार्य गुड़िक मन आसला आगे स्वाधीनता संग्राम करने मन आसला तीव्र विरोध इंग्रेज मान प्रति आगे आसते स्वाधीनता बंधे जड़ी जड़ी से आसीगले इंग्रेज मान बद्ध करने कुहजे न थाए जपरी महसागर बध स्वयं माँ दुर्गा करते जपरी कि जपरी जलंधर बध स्वयं भगवान शिव करते ठीक से भाव आम भारतवासी मिसी से इंग्रेज मान सबुदिन पढ़ी से वंश निवास उद्यम करते ठीक से भाव गले से इंग्रेज मान सबुद आम देश तड़ी देते से दिन था 1947 मसीहा अगस्त 14 तारीख जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में घोषणा जे भारत को इंग्रेज मैंने आउ शासन कर तेणु से दिन ही आम भारत पाइला स्वाधीनता किंतु से दिन से राति ही इंग्रेज मैंने 13 मई सतत नईआडी चली देश को अगस्ट 15 तारीख में पालन कलु पवित्र स्वाधीनता दिवस ये 100 दिवस को आम सर्वदा मन रखी सर्वदा आम पालन करते स्वाधीनता दिवस किंतु सतरे आम स्वाधीनता पाइपार्छु कि ना एवं आम स्वाधीनता नुहे बोआधीन शिकुड़ी बंधा एवं भारत मान छिन्न बस्ता बस कारण एवं भी तार संग्राम निजे शासन कर कारण नारी बलात्कार घटना शिशु आंतनी रप्तानी जेपरी गोटे नीतिदिन कार्य है लोक मैंने शिशु लोक मैंने नारी बलात्कार को निजर गोटे बेठी पाई 2012 मसीह होता 80 निर्भया बलात्कार घटना 2024 मसीह होता मोमिता हत्याकांड घटना और 2025 मसीह सोनिया से आत्महत्या घटना यह समग्र भारतीय नारी मान चढ़ पकई सारे समस्त भारत समस्त नारी मैंने पदा को छिपा कर तेज डर कहीं कारण डर प्रत्येक कारण है निजर भारतीय लोक मैंने ही आज भारत एपरी संकट में पकई तेणु आम मानक यह संकल्प पड़े से दुराचारी दुष्ट भारतीय लोक मैंने जो मैंने कि आम भारत को प्रदूषित करने चेष्टा कर भारत सम्मान को हानि कर चेष्टा कर प्रतिदिन सबुदिन भारत तड़ीदा आम लक्ष्य दरकार आम समस्त मिसिक संकल्प ना जेपरी आम समस्ते भारत पुनर्बार एक सुसंगठित राष्ट्र बनवा आ शिशु बलात्कार घटना कौन कारण ये 2024 मसीह शिशु बलात्कार घटना शिशु रप्तानी घटना आपण बोध हुए चकित कर डाक्तर थाना 7 जन शिशु को गोटे डाक्तर हार्ट किडनी को बिक्री करके पैसा मालामाल होता मात्र कलाधन आउ कौन कर कलाधन लोक जहाँ पाइला से निश्चय तार क्षति सुनिश्चित अटे ठीक से भाव में आम मान निजर संकल्प ना पड़ो जे भारत को पुनर्बार एक सुसंगठित राष्ट्र को परिणत करा पड़ो एते अन्याय होती सही पारा एवं आम समस्त गोटे संकल्प ना पड़ो कारण आम मैंने ही अच्छे देशर भविष्य आज छात्र काल भविष्य आम समस्त मिसिकी गोटे संकल्प ना जेपरि भारत वर्ष हो पुनर्बार एक सुसंगठित राष्ट्र तेणु समस्त एति आह्वान देवी समस्त जेपरि निज भारत वर्ष सुचेष्टा आम तो जैसे सामान से करपा कारण ये भारत वर्ष जीव माँ आम जननी जपरी गोटे माँ कर्तव्य अच्छे से भारत में कर्तव्य अच्छे तेनाली समस्त ये अनुरोध समस्त भारत में चिंता करते निज माँ को चिंता करते भारत वर्ष को चिंता करते तेणु समस्त छात्र गोटे गोटे बात रहा समृद्ध हुआ तुमे सशक्त हेबा भारत समृद्ध हुआ तुमे सशक्त हेबा भारत विकास शीर्ष थी भारत एते मात्र संघ मात्र संघ ये कही वक्तव्य विराम दूसरी यदि कौन मोर वक्तव्य प्रश्न त्रुटि थे तेज सब उद्देश्य क्षमा आशा करुच्छे ये वक्तव्य को शेष कर जय हिंद। आज शांतकमय परिवेश उपस्थित सम्माननीय सभापति महोदय उपस्थित वरिष्ठ विचारक मंडली पूज्य सुगुरुजन मंडली यंत्रसुगनी मंडली तथा मोर प्रिय छोट बड़ भाई और भौणी मैंने आज हूँ 23तम जातीय विज्ञान दिवस आम भारत मैंने भारत जातीय विज्ञान दिवस में पालन कर निज वक्तव्य उपस्थापन कर धन्यवाद करुच्छे। आज हूँ फेब्रुआरी मास 28 तारीख भारतीय जातीय विज्ञान दिवस हेले विज्ञान दिवस पालन है कहीं विज्ञान अर्थ कौन विज्ञान अर्थ हूँ बाह्य ज्ञान जहाँ को आम मैंने चारिआड़ देखिपार विज्ञान आप से गछ पड़ातु से गछ विज्ञान एक झलक देखा मिले आप जो माटी को अनाइले से विज्ञान एक झलक देखा मिले पृथ्वी कोण अनुगुण मिल विज्ञान एक झलक ए विज्ञान आम मानक केते बंधन होइछि विज्ञान हमको देछि स्नेह श्रद्धा विज्ञान हमको देछि उग्रता धैर्य
विज्ञान जो देश बढ़ाई पारे विज्ञान जो देश भांगी जाई पारे ए विज्ञान सृष्टि हैला कहीं ए विज्ञान सृष्टि कला हैला के मो कहूची डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन ना तो आपण निश्चय शुणिथिबे हम भारत रा जणे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जे कि निज सफल चेष्टा मध्यरे रोमन इफेक्ट नामक एक पदार्थ गठन करथिले ए पदार्थ गठन हैला कि पर 1888 रे तमिलनाडु 1888 तमिलनाडु तिरुचिरापल्ली गाँव ठारे से जन्मग्रहण करथिले ताकर जन्म भारत में कोन थिला एक उत्कृष्ट साधन से जन्म हेतु चाइना विपक्ष निजर प्रदर्शन करथिले यहाँ पर से चेन्नई रा प्रेसिडेंसी कॉलेज निजर पीएचडी डिग्री हासिल करथिले पदार्थ विज्ञान मुंबई रे मध्ये से पाठ पढि निजर उपलब्ध देखै दिले लोक मानक से कहउथिले जे विज्ञान को आकृष्ट हुआ विज्ञान को निजर दूरी दियो ना विज्ञान से जो अंतर काम में निजर नाम को निजर देखि नथिले ताकर विज्ञान प्रति तो अशेष प्रेम एथिला जे से पळे जे इंग्लैंड पर्यंत इंग्लैंड रो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय रे से एमएससी डिग्री हासिल करथिले यहाँ पर से कोलकाता को फिर आसते कोलकाता रे एक विज्ञान करे से पढ़ी रही एक फोरन अणु को टेस्टिंग करी सेठी मध्ये रूप निर्माण करथिले रोमन इफेक्ट ए रोमन इफेक्ट को से निजर नाम अनुसार रोमन इफेक्ट करथिले यहाँ पर निजर रोमन इफेक्ट साहाय्य से समग्र विश्व में परिचित हेले तांको विश्व स्तरीय समग्र पुरस्कार सह नोबेल पुरस्कार को दिया गला 1930 मसीहा 1972 मसीहा पर 1978 मसीहा रे हम भारतर जातीय विज्ञान दिवस पालन चलना फेब्रुआरी 28 तो हम जातीय विज्ञान दिवस पालन कलु हेले विज्ञान को हम एक दिन चिन्ह पारल भारत रे केतना लोक अछते जे कि विज्ञान जो अंतर चिन्ह परछन विज्ञान को पाठ पढ़े जिस नुहे विज्ञान जो अंतर चिन्ह कथा विज्ञान को निज पाठ सह निज मस्तिष्क मध्ये पुरेवा दरकार कारण विज्ञान होची हम को बुझिबा शैली जदि विज्ञान को न बुझिबा तबे देशर को भविष्य हबो आपण जानछथि कि जे इतिहास होची हम अतीत भविष्य होची हम विज्ञान जदि विज्ञान को सुदृढ़ न करिबा ना तबे देश केबे अग्रगति होइबो नाही तेना विज्ञान को आमे सब बळे सफल प्रचेष्टा समे करिबा अमेरिका चीन भई देश किपरि ऊपर को पहुंचै बचै भारत केतना अवस्था अछि भारत तो एबे विज्ञान स्तरे मात्र 22 अवस्था रे अछि काहे किसी ऊपर जाई बने फ्लोरिडा भई देश गुडी को हम मान थार ऊपर अछि तार अर्थ होला आमे माने विज्ञान को सेति अंतर दे पारनु मु जानि पारे जे चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 एरा सब माने ऊपर छाडी पारो चंद्रयान छाडी छु तथापि विज्ञान में केते जिनिस हमर को सब पछिले मध्ये अछि विज्ञान को हम माने एपर्यंत मध्ये बुझी पारनु कारण केते हम जानु जे वैज्ञानिक मान को छाडले विज्ञान कोन हबो आमे माने निजे तो विज्ञान ने दरकार ना केवल वैज्ञानिक मान को सह विज्ञान रहिले देशर भविष्य कोन हबो वैज्ञानिक मान तो निजर भविष्य चिंता करिबे ना देशर भविष्य कोन कोन हम चिंता करबे तेरे जब छात्र हिसाब रे मते पछा न जाय जदि एक नागरिक हिसाब रे पछरा जीव जतबे केवली भारत चाहूछ तेबे मु चाहि सही भारत जो जेहु भारत पहुंचै पाउथिबा शत सहस्त्र वैज्ञानिक मानकर प्रचेष्टा को जो भारत पहुंचै पाउथिबा विज्ञान रो अग्रगति को सही भारत मु निश्चय चाहिबी सही भारत मु जो अंतर निश्चय प्राण में जणाई जे मो भारत होउची मोर मां और जननी जदि विज्ञान रो जदि अग्रगति न हुए तेबे मु निश्चय आपन सामने कहबी जे हम भारत निश्चय निका पछु को दियो विज्ञान अग्रगति होइची मु त निश्चय कहि पारे विज्ञान उन्नति हेइची एथा मते सत्य हेले विज्ञान समस्त को जाई पारे आदिवासी जन जति माने सेमान का विज्ञान से जानछथि कि ना प्राय 10,000 ऊर्ध्व लोक जे कि एपो मते विज्ञान को पहुंची पारे नाही सेमाने विज्ञान को चिन्ह होते पारनाती कारण हमर को लक्ष्य दरकार से 10,000 जन जाति को अरे माने विज्ञान रो सम्मुखीन करिबा जद्वारा कि हमर का भारत एक उच्च देश में पहुंचाइबा भारत को 22 नंबर स्थान रहे भारत को 1 नंबर स्थान पहुंचाइबा लक्ष्य दरकार तेबे मो प्रश्न हां ना उत्तर देउ कोन हमें माने भारत को 1 नंबर स्थान पहुंचाइबा की हां कोन माने अमेरिका चीन में देश को पछरे पकाइबा की हां कोन हमें माने भारत को पुनर्बार एक सुसंगठित वैज्ञानिक भित्तिक देश में परिणत करिबा की हां तेबे ठीक अछि जदि आपण माने कहे लक्ष्य है तेबे मो सहित आपण माने निश्चय रहिबे कारण विज्ञान को आपण माने निजर अहंकार रु सेति की भर पाइबा दादा जदि विज्ञान को भर पाइबा ना विज्ञान पछरे गडैबा हम माने को से सबुळे रहिबा जदि विज्ञान न रहे ना तो देशर भविष्य अंधकार में पळेबा माटी रे निसिदिब देशर भविष्य तेणु से देशर भविष्य जदि बचाइबा चाहिबा तेबे आमे निश्चय हम देशर भविष्य गढि पाइबा जदि ए देशर भविष्य को गढि पाइबा विज्ञान निश्चय भूमिका रही मो सब शास्त्र प्रचेष्टा करछि मोर विज्ञान को बचाइ रखा
কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র মোদীଙ୍କ সফল প্রচেষ্টা যে সে আজি জাতীয় বিজ্ঞান দিবসକୁ পুନର୍ବାର ପାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଲ କିଲ୍ଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ପାଳିତ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଛି এই ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ କିପରି ଅନ୍ତରକୁ ଚିହ୍ନିବା, କିଭଳି ବିଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ଅନ୍ତର ସହ ଯୋଡ଼ିବା, ବିଜ୍ଞାନ